Hello, good afternoon all. My name is Arvind. I have done my bachelor's degree from IIT Kanpur in civil engineering, and I'm currently working as an assistant executive engineer in roads and buildings department of Andhra Pradesh. I have secured an All India rank of 41 in GATE 2021 and All India rank of 91 in GATE 2020, and I have cracked the APPSC examination, in which currently I have enrolled in. Please join us on our Telegram channel, that is Unacademy MyGate CE, to avail the lively content and notified about the upcoming lectures on YouTube and preparatory material for your GATE examination in civil engineering perspective. And here are our Unacademy packages. There is Plus subscription, in which you can get access to live classes followed by weekly tests. The courses will be arranged in a well-structured manner, covering from basics to the in-depth analysis by the top educators. And there will be crash courses for your quick revision before the examination. And there will be rank improvement batch, where you can solve many number of questions to improve your problem solving ability and accuracy in the to crack your examination. And you can watch the videos and you can avail this for unlimited as many times as you can. If we get into the bigger picture, which is iconic, along with all the plus benefits, you can also avail a personal coach with whom you can have one-on-one interaction he will also manage your study plan according to your timetable and your free time. And there will be study booster sessions, personalized test analysis for your weekly tests, to get in-depth analysis of the test by the section and the type of questions. And there will be preparatory study material for your exam preparation, specialized notes and practice tests, and doubt clearing sessions from the top educators and all. And special class, here are the special class features. Interactive live classes. Attend the live class, participate in the chat, and get your doubts cleared from time to time within the class itself. And there will be poll for the learners. Respond to your poll for your better understanding of the ongoing topic in the lecture. And there will be raise a hand option. Talk to your educators in live classes and get your doubt resolved in the real time environment. And switch on the notification bar so that you won't miss the lectures on time. And there will be lecture notes. You can download the lecture notes and get access to the recorded sessions of live classes, so that you can revisit the important topics or unclear topics as many number of times as you want. And you can access all these from anywhere, anytime, and any device. There won't be any limit of all the above. And next, check out our new updates on the Unacademy doubt platform for faster and better way to solve the doubts for the convenience of the viewers. Here are the new things that are included in the Unacademy doubt section. Upload up to 3 doubts at a go. You can post 2 additional doubts while you are waiting for your solution. And next, get solution in your preferred language. If you are comfortable in Hindi, you can get your solution, get your answer or solution in Hindi. Now, simply click caught and submit your question in the Unacademy Ask a Doubt section. Next, live mentoring product. One-on-one live mentoring with all new iconic subscription. Experience the personalized learning with the expert mentors. Discuss your doubts, clarify your concept, and enhance your exam strategy in the one-on-one mentoring session. Here are the subscription pricing of the Plus and iconic subscription. If you get into the 12 months package, you can avail a Plus subscription for 2,704 rupees per month. And if you go into the 24 months, you can avail it for 1,967 per month. Here the pricing is decreased by around 35% compared to the 12-month subscription. And if we go into the iconic subscription for 12 months, you can avail it for 4,704 rupees per month. And if you get into the 2 years pack, you can
avail it for 3,467 rupees per month, and you can avail 10% discount on the above prices if you use the code ARVD10. Next, there are special classes going on the Unacademy platform regarding the preparation for GATE 2022 on transportation engineering, in which we are discussing about the topics in the transportation and the types of questions that might be asked and standard questions for the every topic in transportation for GATE 2022. And next, there will be an Arohan batch starting for GATE 2023, GATE and ESC 2023 for civil engineering. It will be bilingual, Hindi and English. It will start on 15th December of this year, and here are the educators for the upcoming batch. This batch will be started by the strength of materials by Shobhit Srivastava Sir from 2:30 p.m. on 15th December. You can join this batch to get ahead into your GATE and ESC 2023 exam preparation. And there will be combat sessions for the GATE in Unacademy, in which there will be 20 questions within 60 minutes of time. This will be starting on 19th December at 11 a.m. You can experience the thrill of the live combat. Detailed video solution of it by top educators for the examination. You can practice your GATE 2020 exam and get real time ranking among the thousands of aspirants appearing in the examination. There will be separate contest for the respective branches such as mechanical, civil, ECE, EEE, CS and IT. And questions were created by the well-qualified top educators who have cracked the prestigious examination before. And you can stand a chance to win the 100% scholarship for Unacademy subscription. And the 100 lucky participants will win these exciting awards. That will be this can be Apple iPod, JBL headphones, Samsung Tab, JBL speakers, and Amazon vouchers. Enroll yourself on 19 December at 11 a.m. To win the exciting offers and the chance to win the scholarship in the Unacademy subscription. There will be All India mock test for GATE 2022. Complete your final revision for the GATE with All India mock test for GATE 2022. The mock test will be starting from Jan 2 and will go through till Jan 30 on every Sunday. In which the questions were curated by the top educators. These are designed in such a way that you can cover your entire syllabus based on the questions. And for you to experience the real-time exam atmosphere, you can check your All India ranking and where you stand in your preparation. And in this, you can identify your areas of improvement. There will be detailed solution and analysis after the exam. Please enroll now for your better improvement in the GATE examination. And next, boost your readiness for GATE 2022 with top educators on every Sunday, Jan 2 to Jan 30 through All India test for GATE 2022. These were the educators for the test. And next, we'll go into the preparation strategy for the GATE 2022 examination. We'll be seeing the subject-wise weightage once again. There will be total of 14 subjects with including general aptitude, 15 subjects with inclusion of general aptitude, mathematics, and rest 13 are the technical subjects from the civil engineering. The highest weightage will go to the general aptitude, 15 marks in 10 questions. And next, the technical subject, next weightage is taken by the technical subject soil mechanics, followed by maths, 10 to 12 marks. Environment transportation, same as the mathematics, as 10 to 12. Next, fluid mechanics, surveying, RCC, and strength of materials, 12. Irrigation and hydrology for 7. Structures and steel for 6 marks. Construction management and building materials
you will get only 1 or 2 questions at max. Okay, now we will get into the preparation of general aptitude. देखिए इसमें आप क्या करते हैं, आपको इसके लिए पर्टिकुलरली पूरा 1-2 दिन टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो डेली, तो आपको क्या करना है, शुरू करने से पहले आप 3 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का सॉल्व कीजिए। आप प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए, उसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जनरल एप्टीट्यूड का, एंड आपने एक ख़त्म कर दिया, एंड यू कैन गो फॉर ईएससी जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। ईएससी में पिछले 4 साल से एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है, तो यू विल बी सीन अराउंड 40 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द जनरल एप्टीट्यूड, एंड इन गेट अराउंड 50 to 60 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप डेली 3 क्वेश्चन से सॉल्व किया तो, एंड मोस्टली आप 1 मंथ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आपको डेडिकेटेड टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, आप अपना नॉर्मल जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं टेक्निकल और मैथमेटिक्स के साथ। जनरली 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, एंड दैट्स इट। अगर डेली आप शुरुआत में 5-10 मिनट इसको दे दीजिए, दिस विल sharpen your thinking ability as well by solving the general aptitude before your preparation. एंड नेक्स्ट इसमें नॉन टेक में एक और सब्जेक्ट आता है जनरल एप्टीट्यूड में, वर्बल एबिलिटी। इसके लिए भी आप अगर आप क्लास कुछ सुन लिया तो अच्छा है, अगर नहीं सुना तो घबराने की बात नहीं है। उसमें प्रीवियस ईयर देख लीजिए, उसको लगाने के लिए ट्राई कीजिए, एंड आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए डेडिकेटेडली। उसमें आपकी जो जनरल एप्टीट्यूड वर्बल की जो क्वेश्चंस होता है वो सफिशेंट होता है फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में देखिए, एक वर्बल में जनरली 3-4 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन तो आसानी देंगे, सब लोग कर पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया तो 2 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, एंड बाकी 2 क्वेश्चन में थोड़ा मीडियम या थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है और सबके लिए दिक्कत होता है। उसके लिए आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा इस एग्ज़ाम में आता है 65 क्वेश्चन, उसमें अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो बाकी 63 क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करने के लिए। एंड अब बात करते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जनरली पेपर शुरू होने के बाद इसमें एक और दिक्कत होती है गेट की, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले में एक ही क्वेश्चन ही दिखेगा, अगला क्वेश्चन नहीं दिखता है। जनरली हम ऑफलाइन एग्जाम जो भी देते हैं उसमें आपको पेपर दिया जाता है, एक ही साइड में आपको 3-4 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो अगर आप शुरुआत वाला क्वेश्चन नहीं आया तो उसके नीचे वाला क्वेश्चन आ गया तो वो कर लेंगे पहले। इसमें एक प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में, एक ही क्वेश्चन दिखेगा एट ए टाइम आपको। इसमें आपको ये करना है कि आप, लेकिन एडवांटेज जो होता है कि गेट में आपको केवल 65 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, लेकिन टाइम होता है आपका 3 आवर्स। अगर आप एवरेज भी कैलकुलेट किया तो लगभग 3 मिनट 180 मिनट्स होगा टोटल 3 आवर्स, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग 3 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंड इसमें आपको 15-20 क्वेश्चन थ्योरी भी होंगे, वन लाइन आंसर्स, एंड सम थ्योरी क्वेश्चन आपको करने में मैक्सिमम 1 मिनट ही लगेगा। बाकी आपको बच जाएंगे 45 क्वेश्चंस। उसमें आप थ्योरी सॉल्व करने में आधा घंटे भी निकाल दिया तो 2.5 घंटे में आपको 45 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सजेशन ये होता है कि इसमें जब आप क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द पीपल सॉल्व द क्वेश्चंस इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो लोग क्या करते हैं, अगर एक क्वेश्चन आप उनको कुछ डाउट हो गया या वो लेंदी उनको आता है लेकिन क्वेश्चन लेंदी है, वो जानबूझ के देता है ऐसा क्वेश्चन लेंदी वाला, ताकि वो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कंपटीशन में। तो उसमें एडवाइस ये है कि आप उसको छोड़ दीजिए, पहले आपको दिया हुआ 65 क्वेश्चन जो है वो सारे देखना है आपको। क्या पता उस लेंदी क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको 1-1 मिनट में हो जाएंगे। आप बस ये बात ध्यान में रखना, आप लॉजिकली सोच लीजिए, गेट में जो रैंक दिया जाता है अगर नंबर के बेसिस पे, वो कोई नहीं जज करता कि अ, इसने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करके इतना रैंक लाया, इसने आसान क्वेश्चन सॉल्व करके रैंक लाया, वो कोई नहीं देखता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो मुश्किल या आसान है, उसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। बस आपका एंड रिजल्ट जो मैटर करता है, कितना नंबर आप ला पाए एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद।
So that is your ultimate goal. So your ultimate goal will be attaining as much possible marks as you can. तो आप उसको भूल भूल जाइए, मुझे मुश्किल क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है, मुझे रेस्पेक्ट बढ़ाना है लोगों के बीच में, मैंने टफ क्वेश्चन सॉल्व किया, ये मत सोचना। आप लॉजिकली सोच लीजिए, बस आपको नंबर लाना है, आपकी आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन डाउट आया है या लेंदी आया है, इसमें एक अच्छा बात होता है कि गेट में अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो उधर रेड मार्किंग होता है इस क्वेश्चन में। अगर आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन लगा लिया या फिल इन द ब्लैंक लिख लिया तो उधर ग्रीन ब्लिंक होगा उस क्वेश्चन में। अगर आप उसको मार्क भी कर सकते हैं वायलेट में। अगर आप उस क्वेश्चन डाउट होता है लेकिन लेंदी है, आप उसको बाद में सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप उसको मार्क कीजिए सॉल्व लेटर, कम बैक लेटर, ऐसा कुछ ऑप्शन में ना। आप आगे बढ़ते जाइए, आपको ये ध्यान रखना है आपको सारे 65 क्वेश्चन पढ़ना है पड़ेगा। अगर आप गलती से बीच में 2-3 क्वेश्चन में फंस गए लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, 55 या 60 तक की अटेम्प्ट किया, बाकी एंड का 5 क्वेश्चन आप देख नहीं पाए, लेकिन वो 5 क्वेश्चन आसान है, आप पढ़ा हुआ टॉपिक से आगे आप कर सकते हैं आराम से, तो ये आपका बहुत नुकसान कर देगा। तो माई एडवाइस इज ट्राई टू रीड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम। अगर वो क्वेश्चन करने लायक है एंड दैट विल टेक लेस टाइम, आप उसको उधर ही सॉल्व कीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए। कुछ क्वेश्चन डाउट है, कुछ क्वेश्चन लेंदी है, उसको मार्क कीजिए एंड आगे बढ़ते जाइए। एक पूरा एंड से लास्ट तक शुरू से लास्ट तक जाने के बाद फिर से एक साइकिल कवर कीजिए। आप सिंपली आपको जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करके आगे बढ़ते जाइए, आपके पेपर आराम से टाइम के अंदर ही खत्म होगा एंड आपको एक्स्ट्रा टाइम भी बचेगा, आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा। ये मेरा मेन एडवाइस है। एंड आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। अनअकैडमी का जनवरी 2 से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप एनरोल कीजिए। जनवरी 2 से 30 तक चलेंगे ये टेस्ट सीरीज, आप उसमें एनरोल कीजिए, आप ये स्ट्रैटेजी टेस्ट कीजिए उसमें। आप पहली टेस्ट में ये बात ध्यान में मतलब पूरी शिद्दत से तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगता है। आप पहली टेस्ट दूसरी टेस्ट ऐसा आगे बढ़ते जाइए, तब तक आप अडॉप्ट हो जाएंगे फाइनल के लिए। आपको कैसे ना कैसे करके बस आउटपुट आपकी मैक्सिमाइज करना है एंड नंबर आपके मैक्सिमम लाना है। एंड टेस्ट सीरीज में आप देते रहे तो उसमें आपको जनरली मिस्टेक्स जो होता है वो ऐसा ही होता है, सिली मिस्टेक्स होता है, कुछ होता है ट्विस्टिंग क्वेश्चंस देते हैं, वो आप ध्यान ध्यान से करना पड़ता है। ट्विस्टिंग क्वेश्चन वो लोग ऐसा देता है, अगर आप उस टॉपिक बिना पढ़ के गया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, अगर आप उसको पढ़ के गया उसने ट्विस्ट कर दिया, वो आपसे चाहता है कि आप गलत ऑप्शन चूज करें, वो भी देता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। जो नहीं पढ़ के जाता है उसको 0 नंबर मिलता है, लेकिन आप उस टॉपिक को पढ़ के गए लेकिन उसने कुछ घुमा के पूछ लिया, लेकिन आपने आंसर उसमें कुछ अलग वो चाहता है कि आप इस तरीके से करें आपके आंसर गलत निकले एंड वो आंसर आपको ऑप्शन में दिखेगा। गेट में ऐसा ही क्वेश्चन देता है कंपटीशन को वाइड स्प्रेड करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो आप ऐसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखेंगे, वहाँ से आपको आदत पड़ेगा थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता है आप, लेकिन एंड में देता है इसको नियरेस्ट टू द 10 तक राउंड करना है, नियरेस्ट टू द 5 तक राउंड करना है। जनरल लोग देखते हैं क्वेश्चन को, उनका किया हुआ क्वेश्चन आ जाता है, एक्साइट हो जाते हैं, पूरा नहीं पढ़ता है क्वेश्चन, तो लोग सॉल्व करे जाते हैं एंड उसने आंसर में जो आपकी जो डायरेक्ट आंसर आता है वो भी दिया जाता है एंड आपकी जो असली आंसर वो भी दिया जाता है। तो कुछ ही में लोग जो तुरंत आंसर निकाल के बिना पूरा पढ़ के उसको टिक कर देते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मिल जाता है लोगों को। आप वो बात ध्यान में रखना। यही सिली मिस्टेक्स होता है, इनको अवॉइड करना। एंड आपके टेस्ट सीरीज में एक और एडवांटेज जो होता है, कैलकुलेटर की आदत है, वो आप अलग से मत कीजिए। जो आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, उसमें अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसी से कर लीजिए, क्योंकि जनरली गेट कैलकुलेटर से थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं एडवाइस करता हूँ कि जो आप जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं उस टाइम गेट कैलकुलेटर से करते हो आप लोग, वही काफ़ी है फाइनल एग्जाम के लिए। लेकिन जब आप रिवीजन के टाइम प्रीवियस ईयर कुछ सॉल्व करते हैं, आप ये साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, उससे आपके सवाल जल्दी बन जाता है। ताकि आप रिवीजन के टाइम में आपको ये करना है कि मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग वाइज, थ्योरी वाइज सब कुछ। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कीजिए रिवीजन के टाइम। खाली एग्जाम के टाइम आप गेट कैलकुलेटर चलाने में का ध्यान रख लीजिए। आप 5 से टेस्ट सीरीज देंगे अन अकेडमी में, उसमें आपका सही हो जाएगा गेट कैलकुलेटर चलाना और सब कुछ। हाँ, अब ये हो गया। एंड आप एंड नॉन टेक्निकल पार्ट में एक और चीज़ है, मैथमेटिक्स। ये लोग थोड़ा हल्का में ले लेते हैं, लेकिन ये खाली गेट के लिए नहीं है। आगे जो एग्ज़ाम्स आता है ईएससी या कोई और एक एग्ज़ाम्स है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें भी आपको एक काफ़ी मैटर करता है। हमको गेट सिविल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक्स जो होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है एंड कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा मतलब मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वो ईएससी में इंक्लूडेड है, गेट सिविल में नहीं है। एंड इसमें इन 500 में गेट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस है, वो थोड़ा लेंदी टॉपिक्स है लेकिन आसान है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट भी है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे कैलकुलस से कंपेरेटिवली। मुश्किल मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपको इनका क्या करना है देख लीजिए। आप अब तक नोट्स बना चुके होंगे क्लास सुन के, तो उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। एंड उसके बाद रिवाइज कीजिए उसको एक बार, एंड उसको रिवाइज करने के बाद एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वे कीजिए अपने आप को। शॉर्ट नोट्स इस तरीके का बनाना है कि आप उसको कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड आप उसको कोशिश कीजिए कि कितने सिंपल टर्म्स में खुद को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपको बस पेपर में प्रेजेंट करना है, वही आपके शॉर्ट नोट्स बनेगा। अगर आप उस शॉर्ट नोट्स को 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी देखा हो तो आपको याद हो जाना है। उस सिंपलेस्ट टर्म को देख के अच्छा इसका रिलेटेड पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा बना लीजिए शॉर्ट नोट्स। पहले आप ढंग से पूरा पढ़ लीजिए, 1-2 बार रिविजन कीजिए, उसके बाद ही आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ऐसा मत करना कि एक बार पढ़ लिया उसको बनाना है, उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आप वो थोड़ी टाइम के बाद देखा तो आपको पूरा कन्वे नहीं होगा क्लियरली। आपको बस उस टाइम पे सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ पढ़ लिया शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इतना सस्टेनेबल नहीं होता है। तो अब पहले आप उसको शिद्दत से हाँ समझ लीजिए, उसके बाद उसके सिंपलेस्ट टर्म में अपने आप को कन्वे कीजिए। उससे आपको अच्छा खासा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। उस शॉर्ट नोट्स बनने के बाद आप प्रॉब्लम्स भी लगा लीजिए नोट्स पढ़ने के बाद। प्रॉब्लम्स में जो जो आपको नया कॉन्सेप्ट आया है या कुछ आपको ट्विस्टिंग लग रहा है, उसको भी शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना। मैंने यहाँ गलती किया है, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए मुझे, वो भी शॉर्ट नोट्स पे लिख लेना। जब आप वापस रिवीजन करते हैं शॉर्ट नोट्स को, तो आप वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ के याद हो जाएंगे आपको। अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलतियाँ कर रहा हूँ, ये गलतियाँ कर रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ गया तो आपको ध्यान होगा। ये थोड़ा ट्विस्टिंग में पूछ लेता है, मैंने पहली बार ऐसा गलती किया, अब इसको नहीं करना है, तो आप उधर वो सिली मिस्टेक्स, रिपीटेड मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगे एग्जाम में। तो मैथमेटिक्स का होता है 5। मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल 5 चैप्टर है। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस पढ़ने में आपको 2 दिन लगेगा इंडिविजुअली। आराम से आप 1-2 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, प्रीवियस ईयर लगाना है आपको खाली। अगर आपके पास और टाइम है तो आप ईएससी का भी प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। एक और बात है कि पिछले साल जो ईएससी एग्जामिनेशन है, उसमें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स मिला के 25 क्वेश्चंस पूछा गया है। पूरा प्रीलिम्स में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला के 250 क्वेश्चंस होता है, उसमें से खाली एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस पूछा है। मतलब ये दोनों टोटल 10% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स का वेटेज बना लिया था। तो अब खाली गेट के लिए नहीं, आगे एग्जाम्स में भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ता है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के थ्रू। तो आप इसको लाइट मत लीजिए, खाली टेक्निकल पढ़ के मत जाइए, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का भी ध्यान दीजिए। एप्टीट्यूड का आपको बस करना है कि रोज़ आप प्रिपरेशन शुरू करने से पहले 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस वही आपकी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन। जितना दिन बचा है उतना दिन उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस आपकी प्रिपरेशन काफ़ी सही हो जाएगा एप्टीट्यूड का। एंड मैथमेटिक्स को भी आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट से ट्रीट करना, ऐसा ही पढ़ लीजिए। उसका थोड़ा मैथमेटिक्स का लेवल गिर जाता है आपकी नज़र में, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है।
लेकिन उसका वेटेज एक टेक्निकल इम्पॉर्टेंट टेक्निकल के सब्जेक्ट के बराबर है। आप ये बात ध्यान रख लीजिए। बस आपके मोटो ये होना है कि मैक्सिमम नंबर लाना है। तो आपको हर एक चीज़ कवर करना है। मतलब जितना हो सकता है उतना करना है, अपने आउटपुट मैक्सिमाइज करने कीजिए। मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी रखने के लिए कुछ नहीं होता है। आपको कुछ फॉर्मूला रखना है, उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझना है आपको। उसको डिराइव करना वो सब नहीं करना है। बस वो फार्मूला आप पढ़ लीजिए, उसको अप्लीकेशन कैसे करना है बस वो दोनों स्टेप ही सीखना है आपको। उसके लिए बस खाली आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए। उससे आपका एक क्लियर हो जाएगा। एक और बात है, आप सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब आप पहली बार कर रहे हो। आप मत डरिए। एक बार पूरे लगाने के बाद फिर वापस जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है वो पहले टिक कीजिए। जब पहली बार आप कर रहे हैं उसको कुछ सर्कल कीजिए, आपकी नॉमेनक्लेचर में जो भी सिंबल है वो लगा लीजिए। जब एक बार पूरे उस चैप्टर करने के बाद फिर से वापस आए रिवीजन टाइम और वो देखिए जो टिक हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। जब आप दूसरी बार वो देखते हैं ना, आपको जो पहली बार नहीं हुआ है कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस फ्लो में चले जाते हैं ना, आपकी थिंकिंग बदल जाती है। जो किस तरह से हमसे सॉल्यूशन निकालना चाहता है, कैसे एप्लीकेशन हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, हम धीरे धीरे जितना प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे उस एग्ज़ाम के अप्रोच में अपना दिमाग भी सोचने लगते हैं। सो आप वापस रिवीजन में जो आपसे पहली बार जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो अगले दूसरी बार जब फिर से करोगे ना, कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका प्रोग्रेस है, आप सही कर रहा है मतलब, ऐसा कुछ। एंड मैथमेटिक्स हो गया। नेक्स्ट हम पिछले यूट्यूब लेक्चर में हम देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा है, उसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है। उस ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम कौन कौन सी पार्ट देखा है। क्रॉस स्लोप और लॉन्जिट्यूडनल स्लोप देखा है। क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं ड्राइनेज पर्पस के लिए। एंड नेक्स्ट एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा है हमने ग्रेड कंपनसेशन। मतलब हिली एरियाज में क्रॉस स्लोप जो है वो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि व्हीकल्स को अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए अगर स्लोप और हिली एरिया में टर्न्स होता है अपवर्ड, वो दोनों में वो दोनों रेसिस्टेंसेस आ गया तो व्हीकल की पावर ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, कभी कभी चढ़ भी नहीं पाते व्हीकल। तो उसको वहाँ पे कंपनसेशन करते हैं ग्रेड। ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि 75/R और 30+R/R दोनों वैल्यू में जो मिनिमम होता है वो ग्रेड कंपनसेशन लेंगे, वो एक्चुअल ग्रेडियंट जो है उससे कम कर देते हैं। एंड जो कम करने के बाद आपकी वैल्यू जो आता है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए, 4% तक लिमिट कर देते हैं। आप वो लिमिटिंग वैल्यू ध्यान रखना, वो आपको ईएसए में पूछा जाएगा या गेट में पूछा जाएगा। गेट में अब तक पूछा नहीं है। अगर आप पूछ लिया, उसने ऑब्जेक्टिव वाइज दे दिया तो आपकी जो वैल्यू मान लो आपका 3.5 आया है उस फार्मूले के थ्रू, वो वैल्यू भी आपको ऑप्शंस में दिखेगा। तो आप ये बात ध्यान रखना है कि लिमिटिंग वैल्यूज भी उसका रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, डोमेन और रेंज क्या क्या है, वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हमने देखा है साइड डिस्टेंस देखा है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, ओएसडी क्या होती है, ओएसडी जोन कितना प्रोवाइड करते हैं। 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी मिनिमम होता है ओएसडी जोन का लेंथ, एंड 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी डिजायरेबल होता है। नेक्स्ट हमने देखा है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, जब हॉरिजॉन्टल कर इनकाउंटर करते हैं उस टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इनटू द पिक्चर और मूविंग द व्हीकल आउटवर्ड। सो हम क्या करते हैं, थोड़ा विथ रेस्पेक्ट टू द इन एड्ज आउटर एड्ज को अपवर्ड एलिवेशन में प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि व्हीकल की जो वेट की कंपोनेंट है वो एक इनवर्ड कंपोनेंट आती है, वो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करती है। एंड नेक्स्ट हमने देखा है कि सेटबैक डिस्टेंस देखा है, क्लियरेंस कितना देना चाहिए और क्रिटिकल कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ द ओवरऑल सेंटर लाइन ऑफ द रोड से क्या होता है, एंड सेंटर ऑफ द इनर लेन ऑफ द रोड से क्या होता है वो देखा है हमने, वहाँ तक देखा है। आज हम डिस्कस करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में।
सॉइल मैकेनिक्स टेक्निकल में सबसे ज़्यादा वेटेज करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट है। इसकी वैल्यू अराउंड इसके मार्क्स अराउंड 12 to 15 मार्क्स है, मतलब 12 to 15% है खाली एक सब्जेक्ट से। एक खाली गेट के लिए भी नहीं है, ईएससी प्री और ईएससी की मेंस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि रैंक लाने में। तो इसका जनरली टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है और उसमें ब्रीफली क्या क्या होता है एंड उसमें कैसे सवाल पूछा जाता है वो देख लेते हैं पहले। हाँ, जनरली एक शुरुआत वाला चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल जनरली बेस्ड ऑन इट्स नेचर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है, एंड नेक्स्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ एक्यूमुलेटेड, इन सब से क्लासीफाई किया जाता है। एंड टाइप्स ऑफ क्लेस कुछ होता है, बेंटोनाइट क्ले, ब्लैक कॉटन सॉइल एंड ऑल इसमें आता है। एक गेट के लिए ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, ईएससी के लिए कभी कभी पूछ लेता है, ये आप पढ़ लीजिए। क्लासिफिकेशन के बाद एक और चैप्टर आता है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, मतलब इसमें सॉइल फेज डायग्राम मान लेते हैं। सॉइल फेज डायग्राम जो होता है पूरा उसको पार्ट्स पार्ट्स कर देते हैं, सॉइल का वॉल्यूम कितना है, उसमें वॉइड्स का जो वॉल्यूम है वो कितना है, उसमें अगर वाटर है तो उसका वॉल्यूम कितना है, वॉइड रेशो क्या होती है, वॉइड रेशो होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सॉरी। एंड वॉइड रेशो की मिनिमम वैल्यू है 0.35, मैक्सिमम वैल्यू है 0.91। 0.35 मतलब अपने मैक्सिमम कंपैक्टेड स्टेट है, मिनिमम मतलब अपने मैक्सिमम फ्री स्टेट मान लेते हैं। नेक्स्ट वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको ईएससी के लिए ध्यान रखना पड़ता है, गेट में भी पूछा था उसने एक दो क्वेश्चन, आप एक बार वो ध्यान रख लीजिए। एंड नेक्स्ट इसमें पूछता है डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी का बेसिक फार्मूला जो होता है टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। आप पहले ये ध्यान रख लीजिए उस फार्मूला को अप्लाई करने से पहले। बल्क इसमें सैचुरेटेड डेंसिटी बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है गामा डबल इंटू जी प्लस ई एस बाई 1 + ई। एंड अपना 100% सैचुरेटेड वाला हो गया गामा डबल जी इंटू 1 + W/1 + E। ड्राई का होता है गामा डबल इंटू G/1 + E एंड सो ऑन। इसमें पिछले प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछा था, सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन सी वाटर। जनरली यहाँ पे जो सैचुरेटेड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जो गामा डब्ल्यू जी इंटू 1 + W/1 + E, उसमें जी वैल्यू जो लेते हैं 2.7 या 2.65, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल वाटर, मतलब G is equal to density of the soil grain by density of the normal water या unit weight of the solid grain by unit weight of the normal water। उसमें बहुत लोग हैं जो इस फार्मूला से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, उसका आंसर भी उसने ऑप्शंस में दे रखा है। बहुत लोगों का नेगेटिव भी आ चुका है। वहाँ पे गलतियाँ ये की कि वो लगा सकते हैं आप फार्मूला, गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो लोगों ने विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल वाटर ले लिया था। अब वहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू सी वाटर लेना पड़ता है जी की वैल्यू को, तब आप उस फार्मूला लगा सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। या अगर आप उसको ऐसा भी कर सकते हैं टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, उससे भी सही आएगा। एंड उस फार्मूला के थ्रू करना चाह रहे हो तो जी विथ रेस्पेक्ट टू सी वाटर लेके करना है, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये कुछ कुछ ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, ये लोग ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं हर साल। कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको किया मतलब आप सोचते हैं कि इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आपकी जो नॉन नॉलेज से, लेकिन वो लोग कुछ ट्विस्ट कर देते हैं ऐसा कुछ। बहुत लोग उसको गलत लगा के आ सकते हैं, ये लोग इस क्वेश्चन से डिफरेंस क्रिएट करते हैं गेट वाले। तो आप ये बात ध्यान में रखना, अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो ये वाले क्वेश्चन एनकाउंटर करेंगे एंड आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी इम्प्रूव करते जाएगी इस क्वेश्चन में ये। एंड नेक्स्ट इसमें वाटर कंटेंट मेजर करने के लिए भी होते हैं इसी टॉपिक पे।
टिक्नोमीटर टेस्ट एंड ओवन ड्राइंग मेथड एंड ऑल। एंड इसके अगला टॉपिक हम देखें तो सॉइल स्ट्रक्चर एंड मिनरलोलॉजी। जनरली सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पर कोर्स ग्रेन सॉइल, मतलब हाई स्ट्रेंथ का सॉइल, हनीकॉम स्ट्रक्चर फॉर फाइन सैंड्स, क्ले, लेक वाली क्ले का क्या स्ट्रक्चर होता है, मेरेन क्ले का क्या होता है, एक्सोट्रोपी। एंड नेक्स्ट कोएसिव सॉइल्स एंड नॉन कोएसिव सॉइल। कोएसिव सॉइल्स का सरफेस एक्टिविटी होता है, नॉन कोएसिव सॉइल्स का सरफेस एक्टिविटी नहीं होता है। इन कोएसिव सॉइल्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनरलोलॉजी क्या है, कैलियोनाइट आता है, इलाइट एंड मोरिलोनाइट, उनका क्या रिलेशन है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग में, मतलब कौन किसका ज़्यादा श्रिंकेज है, किसका ज़्यादा स्वेलिंग है। ये सब आप देख जाएंगे। एंड प्लास्टिसिटी क्यों आता है क्ले में, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आपको आता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज मतलब होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव डेंसिटी, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड सो ऑन। अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल लेते हो, इसका प्रॉपर्टीज होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव डेंसिटी। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो, अगर आपकी सॉइल का साइज जो है वो 75 माइक्रोमीटर से कम है तो उसमें हम सीव साइज एनालिसिस में ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। अगर उसकी साइज 75 मीटर से कम है तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से उसकी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। इन सब को एक लॉग कर में प्लॉट करते हैं, क्योंकि हमने कुछ सॉइल सैंपल लिया तो उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होता है हल्की से सैंपल में, तो हम हर एक वैल्यू को एक्स वाई एक्सिस में नहीं लगा सकते, तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉग स्केल में प्लॉट करते हैं। लॉग स्केल में क्या होता है कि एक लाइन बन जाती है अच्छा खासा, उसमें 3 टाइप्स बनते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, वेल ग्रेन्ड, यूनिफॉर्मली ग्रेन्ड एंड गैप, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड जो होता है, हर एक साइज की सॉइल पार्टिकल आपको दिखेंगे उस सैंपल में। एंड यूनिफॉर्म ग्रेडेड जो होता है उसमें हर एक सैंपल ऑलमोस्ट आप हर एक सॉइल पार्टिकल आपको सेम साइज में दिखेगा। गैप ग्रेडेड जो होता है, कुछ ग्रेड वैल्यू मिस हो जाते हैं, मतलब आपको कुछ 4.75 mm टू 2.5 mm तक पार्टिकल्स है, लेकिन आपको 2.5 mm से 1.25 mm तक मिसिंग है, एंड नेक्स्ट 1.25 टू 75 mm तक पार्टिकल्स है। तो बाकी जो गैप है उसमें कर्व जो हो जाती है फ्लैट हो जाती है, वहाँ पे हम उसको पिक्चराइज कर सकते हैं कि अच्छा इस ग्रेड की वैल्यू ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स आर मिसिंग, सो दैट इज अ गैप क्रिएटेड इन द सैंपल। इसमें वेल ग्रेडेड जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है उसका वॉइड जो होता है, पार्टिकल जितना ज़्यादा होता है, पार्टिकल साइजेस कितना ज़्यादा होता है, उनके बीच का वॉइड जो है वो उतना ही बड़ा होता है। वेल ग्रेडेड में क्या होता है, हर एक साइज का पार्टिकल है, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है उनका वॉइड जो होता है वो वॉइड को उससे थोड़ा कम साइज वाला पार्टिकल्स फिल करते हैं, एंड उनका वॉइड्स को उससे ज़्यादा कम साइज वाला पार्टिकल्स फिल करते हैं। तो ऐसा आप सिक्वेंशली देख रहा था, उसमें वॉइड जो है वो कम होता है वेल ग्रेडेड में। तो वेल पैक्ड सॉइल होता है, उसका शेयर स्ट्रेंथ अच्छा होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए वो प्रेफर करते हैं लोग। हो गया। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला दिया जाता है ई मैक्सिमम माइनस ई फील्ड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम जो है उसका लूज स्टेट में, ई मिनिमम जो है लेबोरेटरी में आपको उसको कंपैक्ट करके कितना मिनिमम ला सकते हैं, ई मिनिमम को वो वैल्यू है। एंड नॉर्मल ई जो है वो फील्ड में कितना है वो देखते हैं, उससे रिलेटिव डेंसिटी दिया जाता है। एंड उसका वैल्यू, उसका मार्क्स होता है 15%, 15 to 35%, 35 to 65, 65 to 85 एंड मोर देन 85। वो दिया जाता है ग्रेडिंग वेरी लूज, लूज, मीडियम, डेंस एंड हाईली डेंस। उससे आपकी कोर्स ग्रेन की नेचर डिफाइन किया जाता है, कितना डेंस है और सॉइल फील्ड में। हो गया। एंड नेक्स्ट आते हैं हम
फाइन ग्रेन सॉइल पे। फाइन ग्रेन सॉइल को अटरबर्ग लिमिट से डिफाइन किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़। उसमें 3 लिमिट होते हैं, एक श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। श्रिंकेज लिमिट उसका मतलब होता है कि द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड। जो आप सॉइल फेस डायग्राम देखते हैं ना, वो जो वैल्यू टोटल वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स प्लस वाटर प्लस एयर, वो सब करस्पॉन्ड्स अप टू दी वो श्रिंकेज लिमिट तक वॉल्यूम है। अगर आप वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से कम रखा तो उसके वैल्यू चेंज नहीं होगा, वॉइड्स उतना ही रहेंगे, बस एयर रहेगा वॉइड्स में। अगर आप श्रिंकेज लिमिट तक वाटर कंटेंट प्रोवाइड किया तो फुल्ली सैचुरेटेड सैंपल बनेगा। अगर आप श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा वाटर कंटेंट दिया तो आपकी सॉइल की वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाएगी, एंड आपकी आपकी जो सॉइल प्रॉपर्टीज जो यूज़ करते हैं आप, E इंटू एस इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू, वो श्रिंकेज लिमिट के बाद वर्क नहीं, और रिलेशन वैलिड नहीं होती है। आप ये बात भी ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, आपकी जनरली वाटर कंटेंट जो है वो श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा देता है, बोलता है कि उसके सैचुरेटेड बल्क डेंसिटी निकालने के लिए आप नॉर्मली फार्मूला यूज़ कर देते हो, गामा डब्ल्यू इंटू जी इंटू 1+W/1+C। वहाँ से जो वैल्यू आते हैं वो सब्स्टिट्यूट करते हो, निकल जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में है तो आप टिक कर देते हो, लेकिन आप चेक करना पड़ेगा आपको पहले। जो आपकी जो रिलेशन है ना, G/W = E/S, उसमें अगर आपकी वाटर कंटेंट जो है अगर वो श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा है तो आपकी सैचुरेशन जो है 100% से ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि वाटर कंटेंट वहाँ पे दैट इज़ मोर देन द श्रिंकेज लिमिट, सो आप वो रिलेशन वैलिड नहीं होती है। जो हम बल्क डेंसिटी ड्राई डेंसिटी का रिलेशन जो होता है उधर, वो वैलिड नहीं होता उधर। यहाँ पे हम बेसिक फार्मूला जो होता है डेंसिटी इक्वल टू टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, वहाँ से निकालेंगे। तो आप इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, श्रिंकेज लिमिट ऐसा सवाल बन सकता है इधर। इस टाइप की गलतियाँ होने के चांसेस है। एंड नेक्स्ट अपना आता है लिक्विड लिमिट। अगर आपकी सॉइल वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज मोर देन लिक्विड लिमिट, आपकी सॉइल जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है, एट लिक्विड लिमिट shear स्ट्रेंथ ऑफ एनी सॉइल इज 2.7 किलो पास्कल्स। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ईएससी में पूछ सकता है, गेट में भी कभी कभी पूछा है। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, shear स्ट्रेंथ ऑफ द soil at liquid any soil at liquid limit is 2.7 किलो पास्कल्स। यूनिट्स पे आप ध्यान रख लेना। अब बहुत लोग वैल्यू याद कर लेता है लेकिन यूनिट्स इतना ध्यान नहीं देता है। गेट में ठीक है, ईएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, उसने वैल्यू दे देता है सेम, लेकिन यूनिट्स उसने बदल चेंज कर देता है। एक में देता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक में देता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक में देता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो आपने वैल्यू पढ़ा है लेकिन यूनिट्स नहीं देखा तो आपका पूरा उधर वेस्ट हो गया आपका, जो आपने देखा था वैल्यू। तो आप यूनिट्स भी ध्यान रख लीजिए, एजम्पशंस और यूनिट्स ध्यान रख लेना ईएससी के लिए। गेट में भी पूछ लेता है लेकिन कम क्वेश्चंस होता है कहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को गेट्स में, लेकिन ईएससी में ऐसे माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स में पूछता है। आप ये बात ध्यान में रख लीजिए। एंड नेक्स्ट आपका आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिमिट्स हो गया, यहाँ पे इंडेक्सेस आएंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट्स, ये क्या करते हैं, दिस डिफाइंस द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन एट ए पर्टिकुलर लोडिंग। अगर आप कुछ लोड अप्लाई किया तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है अगर उस सॉइल की प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो चीज़ डिफाइन करती है। इसका भी एक डोमेन्स होता है। पहला होता है 7% है, अगर 7% से कम है तो लो प्लास्टिक, अगर 7 to 17% है तो मीडियम प्लास्टिक, अगर 17% से ज़्यादा है तो हाईली प्लास्टिक। एंड नेक्स्ट अपना दो लिमिट्स आता है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, सॉरी कंसिस्टेंसी लिमिट एंड लिक्विड लिमिट, लिक्विड इंडेक्स।
कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विड इंडेक्स ये दोनों इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विड इंडेक्स इक्वल टू 100% होता है। एक जनरली इसमें एक सवाल पूछता है कि पूछता है कैन लिक्विडिटी इंडेक्स भी नेगेटिव पूछ सकता है। ईएसए में पूछा गया था, गेट में भी पूछ सकता है, आप ये ध्यान रखिए, इट कैन बी नेगेटिव। इन दैट केस द सॉइल विल बी इन सेमी सॉलिड स्टेट। तो आप इस बात पे ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी एंड लिक्विडिटी इंडिसेस पे ये दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों का समेशन जो होता है वो 100% होता है। कंसिस्टेंट इंडेक्स जो है वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिफाइन करती है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज़्यादा है तो लिक्विडिटी इंडेक्स कम होता है, उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी इज एक्टिविटी इंडेक्स। एक्टिविटी इंडेक्स दिस डिफाइंस द परसेंटेज ऑफ क्ले इन द ऑरिजिन। इस ये क्या क्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ क्ले प्रेजेंट इन इट। एक्टिविटी इंडेक्स जनरली दिया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग थ्रू 2 माइक्रोमीटर सीव। उसका मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ क्ले सॉइल इन दैट रीजन, परसेंटेज ऑफ क्ले इन दैट रीजन। इसका डोमेन्स दिया जाता है एक्टिविटी इंडेक्स का 0.75 एंड 1.25। अगर आपकी 0.75 से कम है वो है लेस एक्टिव, 0.75 टू 1.25 मॉडरेट, अगर 1.25 से ज़्यादा है तो हाईली एक्टिव। तो अगर आपकी सॉइल हाईली एक्टिव है तो उसका स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ज़्यादा है, अगर आपकी सॉइल लो एक्टिव है तो उसका स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कम है, मतलब उस उधर उस रीजन में क्ले कंटेंट कम है। आप ये बात ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे अपना ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, मतलब उस रीजन का सॉइल कौन से टाइप ऑफ सॉइल है उसको कैसा क्लासिफाई करते हैं। उसको जनरली 3 मेथड से क्लासिफाई करते हैं। पहला मेथड होता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें खाली सॉइल इज क्लासिफाइड बेस्ड अलोन ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे जोन्स दिया जाता है कि एक 2 न्यूएम सबसे छोटा है, एंड नेक्स्ट 75 न्यूएम, नेक्स्ट 4.75 मिलीमीटर, एंड नेक्स्ट सो ऑन। अगर आपकी सॉइल की साइज जो है वो इज लेस देन 2 न्यूएम, then it will be classified as clay. If the size is between 2 to 75 mm, that is classified as silt. And the size between 75 micrometer to 4.75 mm, that is classified as sand. And if it is more than 4.75, that is classified as coarse grained soil. तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर। इसमें जनरली 2 पैरामीटर्स यूज करते हैं, एक ग्रेन साइज है एंड नेक्स्ट इट विल आल्सो यूज द अट्रिबर लिमिट्स। इसका फॉर्मूला जनरली दिया जाता है 0.2 ए प्लस 0.005 ए सी प्लस 0.001 बी डी कुछ दिया जाता है। वो हम बाद में देखेंगे, ये जस्ट ब्रीफली हम चैप्टर वाइज जा रहा है क्या क्या होता है उसमें। आप वो आपको इसी में नहीं, खाली आपको ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे मटेरियल जो होता है ना उसमें यूज़ करते हैं जनरली, ए फार्मूला के थ्रू टाइप ऑफ सॉइल क्लासीफाई करते हैं। इधर जो ग्रुप नेम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको नंबर मिलता है, उसका रेंज जनरली होता है 0 to 20। उसका नंबर जितना कम है उसका वहाँ पे सॉइल का उतना अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसका शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, व्हीकल कैरिंग कैपेसिटी एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी of that particular soil is high if the group number is low। बस ये बात ध्यान में रख लीजिए आपको। एंड नेक्स्ट आता है इंडियन स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। इसमें ग्रेन साइज एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, अट्रिबर लिमिट्स भी यूज़ करते हैं। इसमें जनरली क्या करते हैं, पहले सीव एनालिसिस करते हैं, उसमें डिफाइन करते हैं कौन सी परसेंटेज ऑफ सॉइल ज़्यादा है। मतलब हमने पहले सीव साइज देखा था साइज डिस्ट्रीब्यूशन में,
जो कि 4.75 mm, नेक्स्ट 75 माइक्रोमीटर, नेक्स्ट 2 माइक्रोमीटर। पहले इसको डिफाइन करना है कि एक कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन है। तो इसका बॉर्डर होता है कोर्स और फाइन ग्रेन का 75 माइक्रोमीटर। अगर अपना सॉइल जो है 55% ऑफ द सॉइल इज मोर देन 75 mm, then it is defined as coarse grain. If the 50% of the soil, more than 50% of the soil is passing through the 75 micrometer, then it is defined as fine grained soil. अगर ये बॉर्डर में है 50-50 है तो हम प्रिफर करते हैं लार्जेस्ट साइज को, तो उसमें हम कैटेगराइज करते हैं द सॉइल इज कोर्स ग्रेन। अगर मान लो आपकी सॉइल जो है वो फाइन ग्रेन है, तो उसमें हम एक ए लाइन ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ पे। वहाँ पे एक्स एक्सिस में आपको होगा वाटर कंटेंट, एंड वाई एक्सिस में आपको होगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। उसमें 3 पार्ट्स किया जाता है, एंड अबव द ए लाइन, बिलो द ए लाइन, एंड 3 पार्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। वहाँ पे आप उनको 9 टाइप्स के सॉइल मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक सॉइल भी होता है सिल्ट के साथ साथ। वो कैसे होता है, अगर आपको ओवन ड्राइंग के बाद आपकी वॉल्यूम चेंज जो है सॉइल का, अगर वो 25% से ज़्यादा है तो उसको ऑर्गेनिक सॉइल से क्लासीफाई करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट अपना आता है, अगर मान लें अपना 50% से ज़्यादा इज रिटेन ऑन 75 माइक्रोमीटर सी, तो अपना सॉइल हो गया कोर्स ग्रेन। इसमें भी दो होता है कोर्स ग्रेन में, एक ग्रेवल है एक सैंड है। अपना जो रिटेन्ड हुआ है ना 75 न्यू से ज़्यादा, उसका मान लें हम क्वांटिटी एक्स मानते हैं, X% रिटेन हुआ है। जो एक्स का क्वांटिटी जो रिटेन हुआ है उसमें ज़्यादा पार्ट मतलब किस जोन में आ रहा है, ग्रेवल जोन में जा रहा है या सैंड जोन में जा रहा है। ग्रेवल जोन होता है 4.75 mm, सैंड जोन होता है 4.75 टू 75 माइक्रोमीटर्स। ओके, हम बस पूरे से नहीं करते, जो पार्ट रिटेन हुआ है मतलब X% दैट इज रिटेन ऑन 75 न्यू, उसमें से डोमिनेंट पार्ट किस रीजन में है, कोर्स ग्रेवल रीजन में या सैंड रीजन में, उससे क्लासीफाई करते हैं। अगर वो ग्रेवल रीजन में है मोर देन 50% ऑफ द एक्स क्वांटिटी, देन इट इज क्लासिफाइड एज ग्रेवल। इफ मोर देन 50% इज इन बिटवीन 4.75 mm and 75 micrometer, then it is classified as sand. एक क्लासीफाई होने के बाद फिर इसको हम वेल ग्रेडेड, पूरली ग्रेडेड कैलकुलेट करते हैं फाइन्स के बेसिस अकॉर्डिंगली। इसको वेल ग्रेडेड, पूरली ग्रेडेड, एंड इसको क्लेई, ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल ये भी कैलकुलेट करते हैं। अगर सैंड में है तो वेल ग्रेडेड सैंड, पूरली ग्रेडेड सैंड, एंड नेक्स्ट फाइन्स 12% से ज़्यादा इसको कैलकुलेट करते हैं सिल्टी, क्ले एंड सैंड, सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड, ऐसा कैलकुलेट करते हैं। हाँ, ये आपका हो गया सॉइल क्लासिफिकेशन। उसके बाद अपना आता है परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल्स। इसमें जनरली आप जो एक्विफायर में जो परमिएबिलिटी निकालते हैं ना, वो जनरली लार्ज प्रोजेक्ट्स के केस में टेस्ट करते हैं। जब आप डैम्स या कुछ बनाते हैं, लार्ज एरिया का टेस्ट कर रहा होता है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, वो यूज़ करते हैं परमिएबिलिटी थ्रू द एक्विफायर। उससे हम कैलकुलेट करते हैं। एक्यूरेट होता है, वो कॉस्टली भी होता है। तो आउटवर्ड फ्लो परमेबिलिटी टेस्ट है, एंड इनवर्ड फ्लो परमेबिलिटी जो टेस्ट होता है सॉइल सैंपल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। जनरली दैट पर्टेन्स टू द स्मॉलर रीजन दैट आर मोर इकोनॉमिक बट लेस एक्यूरेट। जो पंपिंग आउट टेस्ट जो है लार्ज रीजन्स का हमने बताया था, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, दैट्स फॉर लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, एंड दैट आर मोर एक्यूरेट। एंड पंपिंग इन टेस्ट दैट इज फॉर स्मॉल सॉइल सैंपल्स फॉर इन ए पर्टिकुलर रीजन एंड सो ऑन। इसमें 3 टाइप के टेस्ट होता है। एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसका जनरली डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी गिवन एज KIA। के होता है अपना परमेबिलिटी, आई इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड ए इज एरिया ऑफ द सैंपल ट्यूब। एंड नेक्स्ट एक होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। जनरली आप आंसर निकालते हैं ना, आप वो ध्यान रखना कि किस रेंज में आंसर आ रहा है आपको। आप
जनरली इतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना आप, सॉल्विंग एबिलिटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होंगी आपके। एक और चीज़ आपको डेवलप करना है, वो है ऑब्जर्वेशन। आप रिपीटेडली एक ही टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, आप एक ऑब्जर्व कीजिए उसका रेंज कितना आ रहा है आंसर्स का। वो जनरली वैल्यू है, वो रियल टाइम वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं। अगर आप कुछ कोर्स ग्रेन सॉइल का परमेबिलिटी निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू कितना है, वो मैक्सिमम कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कुछ रेंज होता है, उसी रेंज में आपके आंसर आते रहेंगे। एंड फाइन ग्रेन सॉइल होता है ऑन क्लेस का, उसी उनका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, उसका भी एक वैल्यू। ऑब्जर्वेशन भी आपको डेवलप करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ। ये आपको ईएससी में काफ़ी काम आएगा। ईएससी में कुछ क्वेश्चंस, ईएससी में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, वो जनरली रियल टाइम की वैल्यूज जो होता है उसी भी बेसिस पे दिया जाता है, आईएस कोड। एंड आपको रियल वर्ल्ड में उसका वैल्यू कितना होता है, क्ले सॉइल का इस प्रॉपर्टी, ग्रेवल का इस प्रॉपर्टी कितना वैल्यू होता है, उसी की बेसिस पे आपके क्वेश्चन बना जाता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। गेट में नहीं होता ऐसा। ईएससी के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड आप जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एबिलिटी के साथ साथ आप एक ऑब्जर्वेशन को भी डेवलप कर लेना। उससे आप कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप वैल्यू देख के आंसर लगा सकते हो, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप नीचे आंसर देख लेते हो ऑप्शंस में, एंड आपको रेंज दिख जाता है उधर, अच्छा ये इस रेंज में इस रेंज में, तो देन यू कैन डायरेक्टली क्लोज द क्वेश्चन विदाउट कीपिंग ए पेन ऑन द पेपर। आपको इस तरीके से भी एक इंट्यूशन डेवलप करना पड़ता है, एबिलिटी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन। ये ज़्यादा आपको, अगर मेन सॉल्व कर रहे हैं ना आप, उस टाइम आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको आंसर कुछ आ जाता है मेंस एग्ज़ाम में, एंड यू विल गेट, तो यू कैन टेल इट टू योर सेल्फ, अगर ये सही या गलत है आप बोल सकते हो उसको, उसके रेंज देख के। ये आपको जनरली स्टील और आरसीसी उसमें ज़्यादा पता चलता है, उसकी जो स्पेसिंग जो होती है वो कैसा होती है। तो एडवाइस दे रहा हूँ, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसको एबिलिटी के साथ साथ आंसर भी एक बार थोड़ा सा अटेंशन देना, कितना वैल्यू निकल रहा है। हम सेम टाइप की कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट का इतना क्वेश्चन सॉल्व किए है, उसका इतना वैल्यूज आ रहा है, उसका एक बार ऑब्जर्व कीजिए इसका आंसर्स कितना आ रहा है। अच्छा इसका इतना आता है, इसका रेंज इतना होता है रियल टाइम में। आप एक बार उसका भी थोड़ा अटेंशन दीजिए। नेक्स्ट फॉलिंग एट परमेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट डार्स अपना एक हेजन्स इक्वेशन होता है परमेबिलिटी निकालने में, के इक्वल टू सी इंटू डी टन स्क्वायर। उसमें अपना डी होता है सेंटीमीटर्स पे लेंगे, एंड अपना परमेबिलिटी वैल्यू भी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में आएगा। आप यूनिट्स ध्यान में रखिए एम्पिरिकल फार्मूला का, वो मेन होता है, यूनिट्स आपके ध्यान में रखना। मैंने बोला था पहले आपको आंसर्स आप पढ़ लेते हो, लेकिन कुछ माइन्यूट डिटेल जो है उसको अटेंशन नहीं देते हो। वही पूछा जाता है आपको पीएससी के प्री एग्जाम में, एंड कभी कभी गेट में भी। तो चाहता हूँ आप जब नोट्स पढ़ते हो तो थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स एजम्पशन उसको भी अंडरलाइन करना, एंड अच्छे से उसको स्ट्रेस करके पढ़ना, आपकी तैयारी अच्छी होगी। एंड नेक्स्ट उसके बाद आता है कि permeability of the soil based on void ratio and size of the soil, C into d10 square by eq by 1 plus c into gamma w by nu। उसमें ये वाले पार्ट है c इंटू डी टेन स्क्वेयर इंटू eq बाई 1 प्लस सी, इसको कहते हैं हम इंट्रेंसिक परमेबिलिटी। इंट्रेंसिक परमेबिलिटी इंटू गामा डब्ल्यू बाई न्यू, दैट विल बी गिवन एज ए टोटल परमेबिलिटी। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लेते हो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। आपकी जो टोटल ओवरऑल परमेबिलिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सच एज डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। एंड आपकी जो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी है वो आप खाली वॉइड रेशियो और साइज ऑफ द सैंड पे डिपेंड करती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे वो इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी कभी, ईएससी के प्री में पूछ सकते हैं एंड गेट में भी पूछ सकते हैं। आप ये ध्यान रख लीजिए इंट्रिंसिक परमेबिलिटी और ओवरऑल परमेबिलिटी क्या क्या होता है, वो किस किस पे डिपेंडेंट करता है।
दैट्स इट, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी सॉइल की टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दैट्स इट।